Good morning friends, welcome you on our YouTube channel Teach Aware. In previous classes we have studied about the introduction of a quadratic equation, nature of a root, discriminant formula. Now and with the help of example we have understood the factorization method. Today we will study about the completing square method. What is a completing square method? Someone has asked me on a comment box to explain in Hindi, so I will explain in Hindi also. Let's start. Completing square method. Completing square method. With the help of example, I will explain it. Let's take a quadratic equation 9x square minus 15x plus 6 equal to 0. This is a quadratic equation. If we have to check the nature of a root, then we can check it by with the help of the discriminant formula. Okay, now we will solve this question by a completing a square method. First, in previous classes I have already explained about the completing a square method, that what it exactly mean. Completing a square method mean we have to make this in the form of a minus b whole square, either a plus b whole square. This will be the form of a square and this whole will be a complete square. Okay, now move to that what is the first step we have to take in this completing a square method. Now we will divide this whole equation with the coefficient of x square. Coefficient of x square. इस पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहले कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यानी 9 से सारे टर्म को डिवाइड करेंगे, सारे टर्म को या पूरे इक्वेशंस को. Step first, we will divide this all three term and 0 by coefficient of x square. It means 9. 9x square by 9 minus 15x by 9 plus 6 by 9 equal to 0. This is our first step in completing a square method. We will solve it down. 9 1 ja 9, 9 1 ja 9. Then the remainder will be a x square minus 3 3 ja 9, 3 5 ja 15. The remainder will be minus 5 by 3 x. Afterward 3 2 ja 6, 3 3 ja 9. The remainder will be 3 by 2 and 0 by 9. The resultant will be a 0. After this, the second step will be this is our pure constant term and we will remove this pure constant term to a against side. The resultant will be a x square minus 5 by 3 x equal to minus 2 by 3. देखिए पहला स्टेप हम लोगों ने लिया है, पहला स्टेप यहाँ रहा जो कि एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट से सारे टर्म को डिवाइड किया मैंने, जो रिजल्टेंट आया नीचे रखा. फिर जो प्योर कांस्टेंट टर्म है यानी 2 by 3 इनको सेकेंड अगेंस्ट साइड में ले गया है, जो कि सेकेंड स्टेप है हमारे यहाँ.
अब देखिए इनको क्या करते हैं, अब देखिए ये ऑलरेडी फॉर्म हो गया एक्स स्क्वायर, यहाँ पे जो साइन है वही साइन यहाँ पे रखेंगे। देखिए यहाँ पे बहुत आसान तरीका है सॉल्व करने के इसे, कि अगर यहाँ माइनस का फॉर्म है, यहाँ माइनस का साइन है, तो हमें a माइनस बी के होल स्क्वायर पे बैठाने हैं। अगर यहाँ प्लस का साइन है, इट मीन्स a प्लस बी के होल स्क्वायर पे हमें रखना है। यहाँ माइनस का साइन है तो हमें किस पे जाना है, a माइनस बी के होल स्क्वायर। इट मीन्स द रिजल्टेंट विल बी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यही चीज़ हमें यहाँ बनाने हैं। देखिए a स्क्वायर यानी a तो बहुत आसानी से आ जाते हैं, बाकी माइनस साइन है तो माइनस साइन रख दिया, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे हम लोग 2 रखते हैं। a के जगह पे ऑलरेडी यहाँ पे a के जगह पे x आ चुका है, तो बचा b के जगह पे क्या रखेंगे, यहाँ पे a ब्लैंक होगा, यहाँ पे क्या रखेंगे ताकि सॉल्यूशन करने पे -5/3x आ जाए, 5/3x आ जाए। पहला चीज़, इस 2 को कैंसिल करने के लिए नीचे 2 रखेंगे, तो 2 कैंसिल, तो बचा क्या x, यानी हमें एक पार्ट मिल गया, x मिल गया। तो अब क्या बचा लाने के लिए, यानी एक ऊपर 5 चाहिए, तो देखिए 5x आ गया, यानी नीचे 3 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसे 3 रख देंगे। अब इन्हें सॉल्व करने पे, अगर इन्हें सॉल्व करते हैं तो -5/3x आ जाएंगे। लेट्स चेक इट, -2 इंटू x इंटू 5/2 इंटू 3, दिस 2 विल बी कैंसल एग्जैक्ट। नाउ द रिजल्टेंट विल बी 5/3x, गॉट इट। यहाँ पे वही चीज़ आया है। अब देखिए b के जगह पे हम लोगों ने क्या रखा है, 5/2 इंटू 3, इट मीन्स 5/6। तो एक बार प्लस में 5/6 का स्क्वायर कर देंगे और एक बार -5/6 का होल स्क्वायर कर देंगे, और जो बाकी अगेंस्ट साइड में बचा है यानी राइट साइड में बचा है वो -2/3। समझ में आया? पहला स्टेप क्या है, सारे टर्म को एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड करना। सेकेंड, जो रिजल्टेंट बचेगा उसमें से जो प्योर कांस्टेंट टर्म होगा उनको अगेंस्ट साइड में ले जाना। तीसरा, a का वैल्यू तो मिल गया हमें, तो देखिए a का वैल्यू मिल गया, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन यहाँ पे भी है, 2 का साइन 2 हमें रखना ही है, 2 हमारे पास है भी, a के जगह पे यहाँ पे x है तो x मैंने रख दिया। अब b के जगह पे क्या रखना है, हमें सबसे ज़्यादा समस्याएं सारे क्वेश्चन में b के जगह पे रखने में ही होता है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में b के जगह पे ही समस्या होती है कि b के जगह पे सर क्या रखें ताकि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। सारे टीचर्स सारे स्टूडेंट यही चीज़ ध्यान दें कि 2ab तो हमारे पास ऑलरेडी आगे रहता है, 2 इंटू a तो आ चुका रहता है, b के जगह पे क्या रखें ताकि ऊपर वाला टर्म आ जाए सॉल्व करने पे, नीचे वाले टर्म को सॉल्व करें तो ऊपर वाला टर्म आ जाए। तो मैं एक बार और आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि देखिए 2 इंटू a तो आ चुका है, b के जगह पे पहले ऊपर वाले टर्म को बैठाएं कि ऊपर वाले टर्म में क्या रखना है हमें। तो पहले देखो इस 2 को कैंसिल करने के लिए नीचे 2 रखना है, क्योंकि हमें कोई प्रोडक्ट ऑफ 2 ऊपर नहीं है, तो इसलिए 2 को कैंसिल करने के लिए एक 2 मैंने बना दिया है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे एक x तो आ चुका है, तो बचा क्या, यानी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे x ऑलरेडी आ चुका है तो बचा 5/3, यानी हम लोगों ने क्या रख दिया 5/3। तो जो b के जगह पे आता है वही चीज़ एक बार प्लस स्क्वायर के फॉर्म में, फिर वही चीज़ माइनस स्क्वायर के फॉर्म में। ये क्यों रखते हैं, ताकि हमारे पास इस फॉर्मूले पे आ जाए a स्क्वायर माइनस 2a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस 2a इंटू b प्लस b स्क्वायर, ये चीज़ आ गया। और देखिए इन दोनों को सॉल्व करने पे रिजल्टेंट क्या आएगा, 0 आएगा। इन दोनों को सॉल्व करने पे रिजल्टेंट 0 आएगा, तो यहाँ पे कोई टर्म ऐसा है नहीं, फिर बाकी -2/3। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एक बार इसे प्लस रखते हैं, पहले प्लस के फॉर्म में रखेंगे फिर माइनस के फॉर्म में रखेंगे। अब देखिए हमें जो
एप्लीकेबल है उन सारी चीज़ों को हम लोग देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये तीनों 1 2 3 टर्म है। ये क्या किस फॉर्मूले पे बैठेगा? ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 5/6 प्लस 5/6 स्क्वायर। तो इन्हें हम रख सकते हैं x माइनस 5/6 होल स्क्वायर। b के जगह पे क्या है? a के जगह पे x है और b के जगह पे 5/6 है। ठीक, अब बचा ये -5/6। अब इनको फिर से अगेंस्ट साइड में ले जाते हैं, जो बच गया उनको फिर से अगेंस्ट साइड में ले जाते हैं। तो बचा क्या? अब देखिए इक्वल टू x माइनस 5/6 होल स्क्वायर इक्वल टू -2/3 पहले से था, इधर माइनस था उधर गया तो प्लस हो जाएंगे और इनके स्क्वायर को तोड़ देते हैं। 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। ये हमारे पास रिजल्टेंट रहा। अब देखिए, अब इन्हें थोड़ा सा हमारे पास स्पेस कम है, इस वजह से हम इन्हें हटाते हैं। अब देखिए ए आ चुके हैं हमारे पास। अब देखिए, अब इनको पहले राइट साइड को सॉल्व करते हैं तो इनका रिजल्टेंट क्या आता है? अब देखिए यहाँ पे x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस द एलसीएम ऑफ 3 एंड 36 विल बी 36। 3 और 36 दोनों का एलसीएम आएंगे 36। ठीक, तो हम क्या रखते हैं? देखिए अब यहाँ पे इनको सॉल्व करेंगे तो कितने टाइम्स में जाएगा? 3 से 36 कितने? 12 टाइम्स में। 12 2 जा 24 माइनस 24 प्लस का साइन है, प्लस का साइन। 36 कितने टाइम्स में जाएंगे? 1 टाइम्स में जाएगा। तो 1 इंटू 25 हो जाएगा। तो रिजल्टेंट होगा यहाँ पे 1/36। तो यहाँ रख सकते हैं x माइनस 5/6। जो इधर स्क्वायर है वो इधर आया तो क्या हो गया? अंडर रूट। हाँ, अंडर रूट सही आप लोगों ने बोला। x को इधर लाएंगे तो अंडर रूट हो जाएगा। तो बचे क्या? x माइनस 5/6 इक्वल टू, अगर किसी भी चीज़ को अंडर रूट से बाहर निकालते हैं तो एक बार प्लस में रखते हैं और एक बार माइनस में रखते हैं, यानी प्लस माइनस 1/6। कट इट। 1 का अंडर रूट करेंगे तो 1 ही आएगा और 36 का अंडर रूट करेंगे तो 6 हो जाएगा। अब देखिए एक बार -5/6 को उधर ले जाते हैं तो x इक्वल टू, इधर माइनस था उधर गया तो प्लस हो जाएगा। प्लस माइनस 1/6 माइनस से इधर आ गया तो प्लस हो जाएगा 5/6। एक बार इन्हें x का वैल्यू निकालने के लिए एक बार प्लस कर देंगे और दूसरे केस में x का वैल्यू निकालने के लिए माइनस कर देंगे। वेट, आई एम एक्सप्लेनिंग इट। इन केस फर्स्ट, पहले देखिए यहाँ तक आप लोगों ने समझा। पहले केस में क्या करना है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है। दूसरे में प्योर कांस्टेंट टर्म को अगेंस्ट साइड में ले जाना है। तीसरे स्टेप में b का वैल्यू सेट करना है हमें, और जो b का वैल्यू सेट करना है उसी चीज़ को एक बार प्लस के फॉर्म में एक बार माइनस के फॉर्म में रखेंगे। फिर फोर्थ स्टेप में जो प्लस के बाद वाला टर्म है वो उसको राइट साइड में ले जाएंगे। फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे यहाँ पे। फिर इनका जो अंडर रूट आएगा एक बार प्लस के फॉर्म में एक बार माइनस के फॉर्म में ला करके रखेंगे। तो ये अब x का वैल्यू निकालना है हमें, रूट्स निकालना है। जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9x², जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है। तो क्या वैल्यू मिलने वाले हम चेक कर लेते हैं। अब देखिए केस फर्स्ट में एक बार प्लस रखते हैं, यानी 1/6 प्लस 5/6। तो x के वैल्यू आएंगे कितने? 6/6। द रिजल्टेंट विल बी 1। केस सेकेंड केस में क्या आएगा? x इक्वल टू -1/6 प्लस 5/6। द रिजल्टेंट विल बी 4/6।
6, इट मीन्स 2/3। एक बार x का वैल्यू 2/3 आ गया, एक बार x का वैल्यू 1 आ गया। दिस इज द डिस्टिंक्ट रूट, दिस इज द डिस्टिंक्ट रियल रूट। जिन्हें समझ में आया वो इसे, अगर फिर से कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में आप लोगों को समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।